Let us see this question, बच्चों. Show that the function f of x is equal to x cube minus 3x square plus 6x minus 100 is increasing on r. पहले फंक्शन लिखना है बच्चों, इसका डेरिवेटिव निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज बच्चों 3x square minus 6x plus 6 आएगा. So this can be written as बच्चों 3x square minus 6x plus 3 plus 3 लिखिए इसको. इसमें से 3 कॉमन निकाल दीजिए. x square minus 2x plus 1 plus 3 आएगा. So 3 into ये जो है बच्चों दिस इज x minus 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन प्लस. सो दिस इज f डैश x. अभी यहां पर देखिए बच्चों, you take any x belonging to r और इसका वैल्यू निकालना है. So if we take any value of x, that means if we take here 0, if we take any negative number or if we take any positive number, इसकी जो वैल्यू आएगी it will be always greater than 0. For example, if I put x is equal to 0, so this will be 6 आ जाएगा. So for all x belonging to r. So this implies f dash x is greater than 0 for all x belonging to r. This implies f is increasing on r. The function f of x is equal to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is always increasing on r. तो पहले फंक्शन लिखना है बच्चों, उसके बाद में इसका डेरिवेटिव निकालिए. इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27. तो यहां पर देखिए बच्चों, व्हाट विल बी कॉमन हियर, टेक आउट 3 कॉमन. देखिए बच्चों 3, this is the square of 4x square minus 12x plus 9 is the square of. So देखिए बच्चों, this is always greater than 0 for all x belonging to r, because 2x minus 3 square, so square of any function it will be always positive, is positive, and 3 is positive. So positive into positive, it will be positive, and which will be always greater than 0. So therefore this implies f dash x is greater than 0. This implies f is increasing on r. So let us solve one more question, bachcho. So show that this function x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. तो इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ओके, या f of x बोल सकते हैं, y मीन्स f of. सो डिफरेंशिएटिंग, पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, dy by dx. So derivative of log of 1 plus x is 1 upon 1 plus x minus, इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यूजिंग कोशेंट रूल करना पड़ेगा. तो कोशेंट रूल कैसे यूज करेंगे बच्चों, v सेकेंड फंक्शन into derivative of first function minus first function into derivative of second function, so whole divided by second function square हो आएगा. So dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x minus, ये 2 plus x, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 2 आएगा, माइनस 2x इंटू, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 का 0, x का 1 आएगा, अपॉन
2 plus x whole square. So this is equal to 1 upon 1 plus x minus, देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x whole square आएगा. So this will get cancelled बच्चों. So this is equal to 1 plus x into 2 plus x whole square. इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 2 plus x whole square माइनस, देखिए बच्चों यहाँ 4 बचा है, 4 इंटू 1 plus x. तो dy by dx इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, 4 plus 4x plus x square है minus 4 minus 4x whole divided by 1 plus x into 2 plus x whole square. ये कैंसिल हो जाएगा. So this is equal to x square upon 1 plus x into 2 plus x whole square. So this is dy by dx, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों f dash x. अब हमें ये चेक करना है कि whether this is positive or negative. So यहाँ पे देखिए x square is always greater than 0. 2 plus x whole square, this is also greater than 0, and 1 plus x is greater than 0 for all x is greater than minus. देखिए बच्चों यहाँ पर -1 से बड़ी वैल्यू अगर कोई भी लेते हैं बच्चों, if we take any value which is greater than -1, then it becomes positive. For example, x is greater than -1, ये इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर्स है बच्चों. दिस will be always positive for all x is greater than -1. अब यहाँ पे देखना है कि x की वैल्यू which is greater than -1, take 0, then it will be positive. So this implies f dash x is greater than 0 for all x greater than -1. So as f dash x is greater than 0, this implies given function is increasing. Let us see one more question बच्चों. So we have to prove that given function f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor increasing in open interval -1, 1. And again we have to find the intervals in which the function is strictly increasing and strictly decreasing. So this question is for 6 marks बच्चों. पहले हमें क्या करना है, देखिए बच्चों f dash x is equal to डेरिवेटिव निकालना है. So this is 2x minus 1. उसके बाद में कि इंटरवल्स निकालने के लिए बच्चों हमेशा यहाँ f dash x is equal to 0 लेना है. So 2x minus 1. So this implies 2x is equal to 1. This implies x is equal to 1 by 2. तो देखिए बच्चों हमारे इंटरवल्स क्या आएंगे, ये इंटरवल्स x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 by 2 है, तो ये -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी. तो इंटरवल्स हमें देखना है बच्चों -इंफिनिटी कॉमा 1 by 2 और 1 by 2 कॉमा इंफिनिटी. अभी f dash x इज इक्वल टू 2x minus 1. अभी देखिए बच्चों इसमें का x belongs to -इंफिनिटी कॉमा 1 by 2. तो f dash x इज इक्वल टू, इसमें का कोई भी एक पॉइंट लेना है बच्चों, -इंफिनिटी टू 1 by 2, इसमें का कोई भी एक नंबर लीजिए. सपोज 0 इज हियर, लाइज बिटवीन -इंफिनिटी टू 1 by 2. सो 2 into 0 minus 1, it is -1.
less than 0. So this implies f dash x is less than 0 for all x belonging to minus infinity to 1 by 2. So this implies f is strictly decreasing in minus infinity comma 1 by 2. अब इसके बाद में दूसरी इंटरवल में देखते हैं बच्चों, इफ x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल देखिए 1 by 2 comma infinity. अब इसमें का कोई भी एक नंबर ले लीजिए 1 by 2 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी, वी कैन टेक एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लीजिए. सपोज 2 इज देयर, 2 into 2 minus 1, so it is equal to 3, which is greater than 0. So this implies f dash x is greater than 0 for all x belonging to 1 by 2 comma infinity. So this implies, देखिए बच्चों, f dash x is greater than 0 for all x belongs to infinity comma 1 by 2. So this implies f is strictly f dash x is greater than 0, so strictly increasing in open interval plus infinity comma 1 by 2. तो इसमें फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है. अभी हमको we have to see here one more question is we have to prove that given function is neither increasing nor decreasing in this interval. तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये -1 है और यहाँ 1, ठीक. यहाँ पे -1/2 और यहाँ +1/2 लेंगे. तो देखिए बच्चों इस इंटरवल में -1 कॉमा -1/2, इफ x इज बिलोंगिंग टू -1 कॉमा -1/2 देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. जस्ट नाउ वी हैव टू एंड x बिलोंग्स टू 1/2 comma 1 फंक्शन इज इंक्रीज. तो इसमें फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इंप्लाइज f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 comma 1. क्वेश्चन बच्चों, find the intervals in which the function, ये फंक्शन 3x raised to 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 is strictly increasing and strictly decreasing. तो देखिए बच्चों इसमें हमेशा ध्यान रखिए इंटरवल्स निकालते समय हमें जो फंक्शन दिया जाता है उसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 0. तो देखिए बच्चों f डैश x इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 12x को हम निकालेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके बाद में इसका f डैश x इज इक्वल टू 0 लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 12x इंटू, अब इसके फैक्टर्स जो है बच्चों x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, इसके फैक्टर्स आई राइट हियर 12x x माइनस 2 x प्लस 1. अब f dash x is equal to 0, तो this implies 12x is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0 means
I'll write here x minus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. तो देखिए दिस implies x is equal to 0, ये 12x is equal to 0 और x is equal to 2 और x is equal to minus. अब यहां से इस इन पॉइंट से हम लोगों को वी कैन राइट इंटरवल्स पर देखिए। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे देखिए 0 -1 और ये 2। तो हमें इंटरवल्स कौन से मिल रहे हैं देखिए, जो यहाँ पे -∞ to -1 एक इंटरवल हो जाएगा, -1 to 0, 0 to 2 और 2 to ∞। सो 1 2 3 और 4 इंटरवल्स। तो ये इंटरवल्स में हमें देखना है कि गिवन फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक एक इंटरवल देखते हैं हम लोग। तो दिस इज f डैश x इज इक्वल टू 12x, ये हमने लिखा है। अभी पहले हम लोग इंटरवल लेते हैं बच्चों माइनस इंफिनिटी और -1, x इज बिलोंगिंग टू। तो देखिए बच्चों इसमें का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, -∞ to -1 में से सपोज -2 लेंगे, इट लाइज, सो इट विल बी 12 into -2 -2 -2 plus 1. So see here बच्चों this is -24 -4 -1। तो देखिए बच्चों ये निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट मीन्स f dash x is negative, that is f dash x is less than 0 for all x belonging to -∞, minus, that means यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद में दूसरी इंटरवल लेते हैं, x belongs to -1, 0, तो f dash x is equal to 12 into, तो -1 to 0 में देखिए बच्चों -0.5 है, ठीक है। इसके बाद में -0.5 -2 -0.5 प्लस 1। तो देखिए बच्चों इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये निगेटिव नंबर है, माइनस, ये निगेटिव नंबर आ रहा है और -0.5 प्लस 1 मीन्स पॉजिटिव नंबर है। तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा इसका प्रोडक्ट। f dash x is equal to positive, which is greater than 0. This implies given function is increasing in this interval. अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे बच्चों 0,2 में 1 नंबर आएगा बच्चों, 1 कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, 1 - 2 1 + 2। तो देखिए दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव नंबर। तो इनका प्रोडक्ट जो करेंगे पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज f dash x is less than 0. This implies given function is decreasing in this interval. अभी फोर्थ इंटरवल देखते हैं, x belongs to 2, तो f dash x is equal to 12, इसमें का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, into 3, so 3 - 2 3 + 1, so this is पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स f dash x is greater than 0 for all x belonging to 2, इसका मतलब ये हो गया इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों को लिखना है कि
सो दिस इंप्लाइज फंक्शन कहाँ कौन से इंटरवल्स में इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल्स में डिक्रीज हो रहा है. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, -1, 0 union 2, infinity and decreasing in -∞, -1 union यहाँ पे 0, 2. So let us solve one more question बच्चों. Find the values of x for which y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function. तो देखिए बच्चों इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे y is equal to इसको स्क्वायर करते हैं x square into x minus 2 whole square, या फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, instead of इसको स्क्वायरिंग let us differentiating with respect to x. So dy by dx is equal to 2 times x into x minus 2 into d dx of x into x minus 2. So this is equal to 2x into x minus 2 आ जाएगा. इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा. इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2. सो दिस कैन बी रिटन एज, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे हम लोग, 2x into x minus 2 into 2 into x minus 1 आएगा. So this is 4x into x minus 1 x minus 2. So this is f dash x है. ठीक, अब यहां पर हमको x की वैल्यू निकालनी, तो 4x into x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. So this implies 4x is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So this implies x is equal to 0 or x is equal to 1 or x is equal to 2. तो हमारे इंटरवल्स क्या आएंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0, 1 और यहाँ 2. तो हमारे इंटरवल्स क्या आएंगे, -∞ to 0, 0, 1 और ये 1, 2 है. ठीक, तो हम लोगों को देखना है इस इंटरवल्स में फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. तो f dash x is equal to 4x into x minus 1 into x minus 2. तो हम लोग पहली इंटरवल लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞, 0. तो देखिए बच्चों इसमें का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, -1 ले लीजिए. तो 4 into -1, -1, -1, -1, -2. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -4 into -2 into -3. That means negative into negative into negative number. So this is negative आएगा. So f dash x is less than 0 for all x belong to -∞, 0. So this implies f is decreasing. तो ये इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब दूसरी इंटरवल ले 0 to 1, 0 to 1 है. अब 0 to 1 में का कोई भी एक नंबर ले लीजिए बच्चों, और फिर उसकी वैल्यू निगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, ये देखना है. So f dash of 0.5 लेते हैं, 0. So इसी 4 into 0.5, 0.5 minus 1
0.5 माइनस 2। तो देखिए बच्चों ये क्या आएगा, ये नंबर आएगा बच्चों पॉजिटिव, ये नंबर आएगा नेगेटिव, ये नंबर आएगा नेगेटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो दिस implies f dash x is, this implies f dash x is greater than 0. This implies f is increasing in 0, 1। ठीक, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब 1,2 लेते हैं। 1,2 में कोई एक नंबर ले लीजिए बच्चों। We can take 1.5. So 4 into 1.5, 1.5 minus 1, 1.5 minus 2। तो देखिए बच्चों दिस इज पॉजिटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर आएगा 1.5, सॉरी पॉजिटिव आएगा 1.5 minus 2, तो इट विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, so नेगेटिव आएगा। So this implies f dash x is less than 0. So this implies f is decreasing in 1,2. So f dash is, so we can say that for all x belonging to 1,2। तो देखिए बच्चों ये 1,2 में डिक्रीज कर। तो हम लोगों को क्या देखना है बच्चों यहाँ पे कि find the values of x in which given function is increasing और इंटरवल हो जाए बच्चों, जैसे -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2 और एक 2 to infinity। तो we'll take x is belonging to 2 to infinity। So f of 3 लेते हैं बच्चों, इसमें का कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, 4 into 3, 3 minus 1, 3 minus 2। So this is positive, ये पॉजिटिव नंबर आएगा और ये भी पॉजिटिव। So positive into positive, that means f dash x is greater than 0 for all x belonging to 2, infinity। So this implies f is increasing in 2, infinity। So therefore we can say that f is increasing in 0, 1 union 2, infinity। Let us solve one more important question bachcho. So we have to find the intervals in which the function f of x is equal to sin x plus cos x is increasing and decreasing, and x is belonging to this closed interval 0 to 2 pi, you can say that। So पहले हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x और इसका माइनस साइन x। इसके बाद में टेक f dash x is equal to 0 to find the value of x, cos x minus sin x। So sin x is equal to ये cos x हो जाएगा। This implies dividing both sides by cos x बच्चों, तो ये sin x upon cos x is equal to cos x upon cos x। So tan x is equal to 1। अभी देखिए बच्चों आपको tan x की वैल्यू 1 ये कौन से इंटरवल्स में आती है, 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई में देखिए, तो 0 to 2 पाई का मतलब यहां से यहां तक। तो tan की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो देखिए बच्चों दिस इंप्लाइज x is equal to पाई।
तो देखिए यहाँ पे पाई बाय 4 और यहाँ पर है, तो 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 और ये 5 पाई बाय 4 बचते हैं। It is x is equal to पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय। तो देखिए बच्चों हमारे इंटरवल्स क्या आएंगे, देखिए इंटरवल्स हमारे देखिए, तो ये 0 to 2 पाई बराबर। अब इसमें पाई बाय 4 और ये 5 पाई बाय 4। हमारे पास कौन कितने इंटरवल्स आ गए बच्चों, देखिए 0 to पाई बाय 4, पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 to 8 पाई। ठीक है, सो लेट अस चेक वैल्यूज हियर। तो हमारा f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x ये है। तो x इज बिलोंगिंग टू 0 to पाई बाय 4 लेते हैं। तो लेट अस टेक हियर पाई बाय 6 लेते हैं। f डैश ऑफ पाई बाय 6 cos of pi by 6 minus sin of pi by 6. तो cos 30 बच्चों root 3 by 2 minus 1 by 2. So root 3 minus 1 upon 2, which is greater than 0. So f dash x is greater than 0 for all x belonging to 0 to pi. So this implies f is increasing in 0 to pi by 4 volts। अब इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में देखिए बच्चों पाई बाय 2 ले सकते हैं। लेट अस टेक पाई बाय cos पाई, इसमें पाई बाय 2 आता है, पाई बाय 2 माइनस sin। So cos pi by 2 is 0 minus 1. So it is negative. This implies f dash x is less than 0 for all x belonging to pi by 4 comma 5 pi. So this implies f is decreasing in pi by 4 comma 5 pi by 4। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, x belongs to 5 pi by 4 comma 2। तो देखिए बच्चों 5 पाई बाय 4 कॉमा 2 पाई में 3 पाई बाय 2 आता है। cos 3 पाई बाय 2 माइनस sin 3 पाई बाय 2। ठीक है, cos 3 पाई बाय 2 is 0 माइनस sin 3 पाई बाय 2 is minus 1। So this is minus minus plus 1 which is greater than 0. So this implies f dash x is greater than 0 for all x belonging to 5 pi by 4 comma 2 pi। तो देखिए बच्चों इसमें इंक्रीज है, इसमें डिक्रीज है, इसमें इंक्रीज है। दिस implies f is increasing in 5 pi by 4 comma 2 pi। f is increasing in 0 to pi by 4 union closed interval pi by 4 comma 2 pi। f is decreasing in pi by 4 comma 5 pi।